السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام حسب معمول چین میں ہونے والی اہم سرگرمیوں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبروں رپورٹس پر مشتمل ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے خصوصی رپورٹس بھی پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ پاکستانی صحافیوں کا وفد چین کا 10 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ صحافیوں نے مختلف شعبوں میں چین کی ترقی کا خود مشاہدہ کیا۔ پاکستانی صحافیوں نے پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ اسٹیٹ کونسل آف چائنا کے انفارمیشن آفس اور چائنا سینٹر فار انٹرنیشنل کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام 15 پاکستانی صحافیوں پر مشتمل گروپ نے 6 سے 16 دسمبر تک بیجنگ، چنگدو، کاشغر، اورومچی اور دیگر شہروں کا دورہ کیا۔ بیجنگ میں انہوں نے چائنا خواننگ کلین انرجی ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی اور بیٹری انرجی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیز میں چین کی پیش رفت کا مشاہدہ کیا۔ صحافیوں نے دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک دیوار چین کے جویون گوانگ سیکشن کا دورہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس گروپ نے جنوب مغربی چین کے صوبہ سیچوان کے شہر چنگدو میں چنگدو پلاننگ ایگزیبیشن ہال، چنگدو انٹرنیشنل ریلوے پورٹ، جائنٹ پانڈا بریڈنگ چنگدو ریسرچ بیس اور تاریخی کوانزائی ایلے کا بھی دورہ کیا۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا تھا کہ اس دورے نے انہیں باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے میڈیا کی طاقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ صحافیوں نے شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہروں کاشغر، اورومچی اور دیگر شہروں میں بھی 6 دن گزارے، جہاں انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے خطے میں معاشی اور سماجی ترقی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مشترکہ تعمیر کی کامیابیوں کا مشاہدہ کیا۔ غیر ملکی امداد سے چلنے والے مالیاتی ادارے چین کی اقتصادی ترقی کے لیے پر امید ہے۔ معاشی ماہرین نے اگلے برس چین کی میکرو معیشت میں استحکام کی نوید بھی سنا دی ہے۔ غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے متعدد مالیاتی اداروں نے 2024 میں چین کی میکرو معیشت میں بہتر کارکردگی کی توقع کی ہے۔ اس سے کھپت میں بحالی اور برآمدات میں اضافے کے ساتھ مزید سرمایہ کاری متوقع ہے۔ UBS کے چین کے 2024-25 کے اقتصادی آؤٹ لک میں قابل اعتماد آمدنی میں مستقل بہتری کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے کھپت میں اضافہ ہوگا اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر صنعتی سرمایہ کاری میں سبز تبدیلی کی رفتار بڑھے گی۔ JP مورگن نے پیشگوئی کی ہے کہ 2023 میں صارفین کی خرچ کی صلاحیت بحال ہونا 2024 میں بھی جاری رہے گا۔ فیڈیلٹی انٹرنیشنل کے مطابق 2024 کے لیے چین کی میکرو معیشت میں استحکام کی توقع ہے۔ انہوں نے جولائی میں نافذ کردہ ان پالیسیز کی کامیابی کا ذکر کیا جو 2024 کے گلوبل انویسٹمنٹ آؤٹ لک میں اس ماہ کے لیے بیان کی گئی تھیں۔ جاپان کی سب سے بڑی بانڈ کمپنی نومورا کے چیف اکانومسٹ کی رائے ہے کہ ترقی کے بہت سے مواقع چین کے منتظر ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ کے ایک نئے دور سے گزرنے والی اربنائزیشن کو آنے والے سال اور اس کے بعد بھی ترقی کا ایک اہم گروتھ پوائنٹ کہا گیا ہے۔ چین میں اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کی تربیت، تعلیم و تدریس کی جدت طرازی پر مبنی اصلاحاتی پروگرام پہ کام جاری ہے۔ چین کی وزارت تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق چین نے ملک بھر میں مصنوعی ذہانت کے 103 پائلٹ یونٹس میں 7,000 سے زائد انٹیلیجنٹ کلاس رومز تعمیر کیے ہیں۔ وزارت تعلیم 2018 سے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک پائلٹ پروجیکٹ پر عمل کر رہی ہے۔ اب تک بیجنگ، شانگھائی، ننگشا خوئی خود اختیار علاقے اور سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے سمیت متعدد مقامات پر مجموعی طور پر 103 اسکولز اور تربیتی مراکز نے اس منصوبے میں حصہ لیا ہے۔ منصوبے میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولز سمیت یونیورسٹیز تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ اساتذہ کی تعلیم کی اصلاحات، تعلیم و تدریس کی جدت طرازی، نیز انتظام و انصرام و جانچ کی اصلاحات پر مرکوز ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس میں کمزور تعلیمی وسائل والے دیہی اسکولز میں اساتذہ کی صلاحیتوں میں بہتری پر توجہ دی گئی ہے، جس کے لیے تقریباً 3,000 اسکولز کا احاطہ کیا گیا ہے اور پسماندہ علاقوں میں 12,000 اساتذہ کو تربیت دی گئی ہے۔ پائلٹ یونٹس نے اساتذہ کی تربیت و تدریس کے معیار کی متوازن اور انفرادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے 5G، بگ ڈیٹا تجزیہ اور دیگر ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ملک بھر میں 7,000 سے زائد اسمارٹ کلاس رومز کی تعمیر اور اپ گریڈنگ کی ہے۔
چین کے مختلف علاقوں میں برف باری سے دلکش نظارے دیکھے جا رہے ہیں۔ قدرت کی دلکشی کو دیکھنے کے لیے تمام پہاڑی سلسلے موسم سرما کی سیاحت کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ چین میں سردی کی حالیہ لہر کے دوران ملک بھر کے مختلف مقامات پر جمعے سے ہفتے تک موسم کی پہلی برف باری ہوئی۔ مشرقی چین کے صوبے آنخوئی کے شہر ہوانگشان میں برف باری کے بعد ہوانگشان ماؤنٹین کے خوبصورت علاقے میں برف سے ڈھکے درختوں نے اس جگہ کو پریوں کی طلسماتی سرزمین میں تبدیل کر دیا۔ اس موسم میں لوگ یلو ماؤنٹین کی جانب کھنچے چلے گئے۔ 1200 مربع کلومیٹر پر محیط یہ پہاڑ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور اپنے مخصوص پائن، خاص پتھروں، بادلوں کے سمندر، بھرپور موسم بہار اور موسم سرما کی شدید برف باری کی وجہ سے معروف ہے۔ وسطی چین کے صوبے خنان کے شہر یانگجاجی میں 1500 میٹر سے زائد کی بلندی پر واقع تیانمن ماؤنٹین نیشنل فارسٹ پارک میں بھی ہر طرف برف سے ڈھکے درخت قدرت کی غیر معمولی کاریگری کا شاہکار نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران خنان کی لانشان کاؤنٹی میں واقع یونبنگ ماؤنٹین پر بھی مسلسل برف باری دیکھی گئی۔ سطح سمندر سے 1200 میٹر سے زائد کی اوسط بلندی کے ساتھ برف سے ڈھکا ہوا یہ پہاڑ یہاں آنے والوں کے لیے خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ ریموٹ ڈرائیونگ گاڑیاں بنانے والی چینی کمپنی منگشنگ ٹیکنالوجی کا بڑا کارنامہ۔ کمپنی نے سخت ماحول میں مشینری چلانے والے ڈرائیورز کی مشکلات کم کر دی ہیں۔ ڈرائیور ریموٹ ڈرائیونگ سسٹم کی مدد سے میلوں دور بیٹھ کے روڈ رولر چلا سکتے ہیں۔ ریموٹ ڈرائیونگ میں پیش چینی کمپنی منگشانگ ٹیکنالوجی ڈرائیورز کو میلوں دور سے گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ اس نے سخت ماحول میں مشینری کو چلانے کے دوران ڈرائیورز کے خطرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ کمپنی کے ریموٹ ڈرائیونگ سسٹم کی مدد سے انجینئرنگ مشینری کا ڈرائیور مانیٹر، اسٹیئرنگ ویل، بریک اور گیس پیڈل سے لیس مصنوعی کاکپٹ میں بیٹھتا ہے اور میلوں دور سے خودکار روڈ رولر چلا سکتا ہے۔ 5G ریموٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے سینٹرل کنٹرول سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں میل دور کاکپٹ کے آپریشنز کو کاپی کیا جا سکتا ہے۔ خودکار ریموٹ ڈرائیونگ سسٹم آس پاس کی معلومات جمع کرنے کے لیے کیمروں پر انحصار کرتا ہے اور پھر گاڑی کے مرکزی کنٹرولر کو منتقل کرتا ہے۔ پروسیس ہونے کے بعد ڈیٹا کو 5G ہائی سپیڈ نیٹ ورک کے ذریعے ریموٹ کاکپٹ میں واپس بھیجا جاتا ہے۔ گاڑی کا مرکزی کنٹرولر ڈوئل CPU سے لیس ہے جو زیادہ تیز رفتار پروسیسنگ سپیڈ فراہم کرتا ہے۔ پورے نظام کا کل ڈیلے 200 ملی سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ کمپنی کے اسمارٹ ریموٹ ڈرائیونگ سسٹم بنیادی طور پر مختلف صارفین کے لیے تیار کیے گئے ہیں کیونکہ تعمیراتی مقامات کے پیچیدہ حالات کی وجہ سے مختلف مصنوعات کے لیے مختلف گاہک ہوتے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں تعینات اقوام متحدہ امن فورس میں شامل چینی دستے کی وطن واپسی ہو گئی ہے۔ انجینئرنگ اور میڈیکل یونٹس نے امن مشن میں تعیناتی کے دوران مختلف ٹاسک مکمل کیے۔ ہفتے کے روز 166 پیس کیپرز پر مشتمل جنوبی سوڈان کے شمال مغربی شہر واؤ میں تعینات چینی امن دستوں کا 13واں اور آخری دستہ اپنے سالانہ مشن کی تکمیل کے بعد واپس چین روانہ ہو گیا۔ سینٹرل تھیٹر کمانڈ کی 82ویں گروپ آرمی اور جانگجو جوائنٹ لاجسٹک سپورٹ سینٹر کی سنتھیٹک بریگیڈ سے تیار کیے گئے یہ دستے انجینئرنگ اور میڈیکل یونٹس پر مشتمل تھے۔ اپنی تعیناتی کے ایک سال میں انجینئرنگ یونٹ نے 3 اہم سپلائی روٹس، 3 اہم پلوں کی مرمت، 3 ایئر لائن مراکز کی مرمت و آرائش اور اقوام متحدہ کے متعدد اڈوں کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر، 220 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی اور مختلف اقسام کے 160 سے زائد منصوبے مکمل کیے۔ میڈیکل یونٹ نے اقوام متحدہ کے عملے اور امن دستوں کے لیے معمول کی طبی امداد اور ہنگامی طبی ریسکیو کی ذمہ داری سنبھالی۔ یونٹ نے 1600 سے زائد مریضوں کا علاج کیا اور 30 سے زائد آپریشنز کیے۔ اکتوبر کے اواخر میں 13ویں چینی امن دستوں کے تمام 331 پیس کیپرز کو جنوبی سوڈان میں امن مشنز کی تکمیل کے دوران ان کی شاندار کارکردگی اور خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ کے امن تمغوں سے نوازا گیا تھا۔ چین کے 5ویں سائنسی تحقیقی اسٹیشن کی مرکزی عمارت کی تعمیر جاری ہے۔ یہ اسٹیشن سائنسی ماحول، سمندری حیاتیاتی ماحولیاتی مشاہدے تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ چین کے 5ویں سائنسی تحقیقی اسٹیشن کی مرکزی عمارت کا پہلا اسٹیل کالم ہفتے کے روز نصب کر دیا گیا ہے۔ یہ کالم بحیرہ راس کے ساحلی علاقوں میں نئے اسٹیشن کی مرکزی عمارت کی تعمیر کے آغاز کی علامت ہے۔
चीन की 40वीं एंटार्कटिक साइंसी मुहिम के नए स्टेशन का ये स्टील कॉलम 16.5 मीटर लंबा है, जो कि स्टील के 6 कॉलम्स में सबसे बुलंद है। एंटार्कटिक मुहिम की 40वीं टीम के अरकान ने इस माह स्टेशन की तामीर शुरू की थी। टीम बैक वक्त प्रोजेक्ट की तामीर और तामीराती सामान उतारने और मुंतकिल करने का काम संभाल रही है। टीम अब तक मुंतकिली का आधे से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुकी है, जबकि बाकी काम 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़ेरे तामीर नया साइंसी तहकीकी स्टेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तवक्को है कि तामीराती मंसूबे को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 माह लगेंगे। स्टेशन को साइंसी माहौल, समुंदरी, हयातियाती और माहौलियाती मुशाहिदे और तहकीक की खातिर 80 मुहक्किकीन को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नया मरकज़ चोंगचिंग और जोंगशन स्टेशंस के बाद एंटार्कटिक में चीन का तीसरा मुस्तकिल रिसर्च स्टेशन होगा। मुकामी फनकार चीन के रवायती बखूर साजी के फन को जिंदा रखे हुए हैं। जड़ी बूटियों से कशीद करदा खुशबू की सकाफत बखूर को चीनी जबान में शियांग कहा जाता है। बखूर माजी में चीन की आला खानदानों में स्टेटस सिंबल समझा जाता था। रिवायती बखोर साजी चीन के गैर मादी सकाफती वर्सों में शामिल है। इस फन से मुंसलिक लोग आज भी इसे जिंदा रखे हुए हैं और खुशबू की सकाफत को फ़रोग देने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। बखोर, जिसे चीनी ज़बान में शियांग भी कहा जाता है, चीनी सकाफत में एक अहम किरदार अदा करता है। ये माजी में चीन के आला ख़ानदानों में बतौर स्टेटस सिंबल इस्तेमाल किया जाता था। इस फ़न की तारीख तकरीबन 6000 साल पर मुहीत है। रिवायती बखोर साजी में खालिस कुदरती जड़ी बूटियों को एक तनासुब के साथ मिलाकर मुख्तलिफ खुशबुएं कशीद की जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती माहौल में 3600 से ज़ायद मुख्तलिफ खुशबूदार जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। एक किस्म के बखौर में बाज़ औक़ात दर्जनों अज्जा शामिल होते हैं, लिहाजा माहिर बखौर साज की सूंघने की हिस्स नहायत हसास होनी चाहिए और इसके इंतखाब की सलाहियत भी मजबूत होनी चाहिए। माहिर बखौर साज खुशबू के इस फ़न को नई नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शिरकत करते हैं। असातिज़ा की ख्वाहिश है कि इस वर्से को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुंतकिल किया जाए। चीनी साख्ता पहले त्यारा बरदार बहरी जहाज शांगडोंग की 4थी सालगिरह मनाई गई। इस जहाज को 2019 में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहरिया के हवाले किया गया था। इस त्यारा बरदार बहरी जहाज ने अब तक कई अस्करी मिशन मुकम्मल किए हैं। चीन के मकामी तौर पर तैयार किए गए पहले तैयारा बरदार बहरी जहाज शांगडोंग ने इतवार को अपनी कमीशनिंग की 4थी सालगिरह मनाई। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज 17 दिसंबर 2019 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहरिया के हवाले किया गया था। तैयारा बरदार बहरी जहाज का नाम मशरकी चीन के सूबे शांगडोंग के नाम पर रखा गया है। सर्विस में आने के बाद से इसने हथियारों के हकीकी इस्तेमाल और क्रॉस रीजनल मैनूवरिंग ट्रेनिंग समेत दीगर अहम मशकों और तरबियती कामों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। इस तैयारा बरदार बहरी जहाज ने बहुत से अव्वलीन एजाज़ात भी अपने नाम किए हैं। 2023 में तैयारा बरदार बहरी जहाज ने जंग के लिए अपनी हमावक्ती तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का एक सिलसिला जारी रखा। अप्रैल में जंगी जहाज ने ताइवान जजीरे के इर्द गिर्द PLA की जंगी तैयारियों के गश्त और फौजी मशकों में हिस्सा लिया। मई में इसने चीन के ताइवान के मशरक़ में फ़ज़ाई और समुद्री इलाके में जंगी तैयारियों की तरबियत में हिस्सा लिया। नवंबर में PLA बहरिया ने शांगडोंग बहरी बेड़े को बहरुल काहिल के पानियों में तरबियत का हुक्म दिया, जिसका मकसद इस बेड़े की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना था। शुमाल मशरक़ी सूबा हेलोंगजियांग में साइबेरियन टाइगर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 1986 से कायम साइबेरियन टाइगर्स होम शेरों की अफजाइश नस्ल का बड़ा मरकज़ है। शुमाल मशरक़ी चीन के सूबा हेलोंगजियांग में मादूमियत के ख़तरे से 2-4 साइबेरियन टाइगर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ 1986 से कायम साइबेरियन टाइगर्स होम दुनिया में साइबेरियन टाइगर्स की अफजाइश का सबसे बड़ा मरकज़ है। इस मरकज़ में रवां बरस शेर के 63 नौज़ायदा बच्चों का इस्तकबाल किया गया और इनमें से तकरीबन 90% मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। ये मरकज़ 40,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहीत है। यहाँ शेरों को कुदरती माहौल फराहम किया गया है। इस वक्त चीन में जंगली साइबेरियन टाइगर्स की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इन्हें बराह रास्त
जंगली माहौल में छोड़ा जा सके। लिहाजा मरकज़ में शेरों को सर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करने की तरबियत फराहम की जाती है ताकि जब वो अपने कुदरती माहौल में वापस लौटें तो इस माहौल का मुकाबला कर सकें। हालिया बरसों में हेलोंगजांग ने साइबेरियन टाइगर्स, ओमोट चीते और दीगर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद कुदरती ज़खायर तामीर किए हैं, जिसके नतीजे में साइबेरियन टाइगर्स समेत नायाब और ख़तरे से दो चार जंगली जानवरों की आबादी को मौसर तरीक़े से बहाल किया गया है। सिंकियांग शाहराह रेशम इकनॉमिक बेल्ट से जुड़ा अहम तरीन तिजारती खित्ता है। सिंकियांग के इलाके में गैर मुल्की तिजारत का हुजम 320 बिलियन युआन से तजावुज़ कर चुका है। सिंकियांग तरक्की की रफ्तार के लिहाज से चीन में दूसरे नंबर पे है। मकामी कस्टम हुक्काम की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगुर खुद इख्तियार इलाके में गैर मुल्की तजारत का हजम रवां साल के पहले 11 माह में 320.53 बिलियन युआन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिंकियांग ने 47.4% सालाना की शरह से तरक्की की, जो मुल्क भर में दूसरी तेज तरीन तरक्की है। तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि सिंकियांग की गैर मुल्की तजारत 300 बिलियन युआन से तजावुज़ कर गई है। शाहराह रेशम इकोनॉमिक बेल्ट के बुनियादी इलाके के तौर पर अपने अर्जियाती महल वक़ू का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सिंकियांग ने रवां साल के आगाज़ से खुली मईशत के नए मैकेनिज़्म बनाए, तिजारती हजम को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की तिजारत के मयार को बेहतर बनाने में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। जनवरी से नवंबर तक 5 वस्त एशियाई ममालिक यानी काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ सिंकियांग की गैर मुल्की तिजारत में साल ब साल 53.4% इजाफा हुआ, जो खित्ते की कुल तिजारती मालियत का 79.8% बनता है। सीपैक मीडिया फोरम इस्लामाबाद में वाक़िया चीनी सफारत खाने के ताउन से मुनक़िद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और चीनी सफ़ीर योंग जेडियोंग ने तकरीब में शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और चाइना इकोनॉमिक नेट ने पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने के ताउन से 8वें सीपैक मीडिया फोरम का इनेकाद इस्लामाबाद में किया है। रवां साल फोरम का उन्वान सीपैक की आइंदा दिहाई, मौक़े और माजी से सीखे गए सबक रखा गया है। 8वें सीपैक मीडिया फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को पूरे खित्ते की खुशहाली का मंसूबा करार दिया और कहा कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान में बिजली के बहरान, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बराह रास्त रोजगार की फराहमी ने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते को मजीद रोशन किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तानी नौजवान नस्ल सीपैक के दूसरे मरहले में इस अजीम मंसूबे से मुस्तफीद होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर जियांग जेडोंग ने कहा कि सीपैक के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल करना एक तारीखी लम्हा था। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में दोनों मुमालिक करीबी रवाबत के जरिए तरक्की और फलाह का सफर एहसन अंदाज में जारी रखेंगे। तकरीब से चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी खिताब किया। 8वें सीपैक मीडिया फोरम में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से मुतल्लिक अवामी आगाही में नुमाया किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के प्रेस क्लब्स को भी सराहा गया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सीपैक के तहत एनर्जी शोबे की बेहतरी के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट, चीनी कंपनी चाइना 3 गॉर्जियस कॉरपोरेशन मेज़बान थे। सेमिनार में क्रूड हाइड्रेट पावर प्रोजेक्ट समेत दीगर मंसूबों बारे शुरका को बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में एनर्जी के शोबे की बेहतरी के लिए शुरू किए जाने वाले मंसूबों से मुतल्लिक इस्लामाबाद में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और चीनी कंपनी चीन 3 गॉर्जियस कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक्किदा इस सेमिनार में करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस कंपनी की जानिब से जारी सोलर पावर प्रोजेक्ट समेत रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुल्क में ग्रीन एनर्जी के शोबे में बेहतरीन किरदार अदा करने पर चाइना 3 गॉर्जियस कॉरपोरेशन को सराहा और कहा कि गवादर से गिलगित तक सीपैक तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है, जो कि अगले मरहले में दाखिल हो गया है। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा दुनिया का अजीम मंसूबा है, जिसमें 3000 मंसूबों पर काम जारी है और दुनिया की निस्फ आबादी इससे मुस्तफीद होगी। चाइना मीडिया ग्रुप से बात करते हुए चाइना 3 गॉर्जियस कॉरपोरेशन के सीनियर एडवाइजर NA जुबैरी ने कंपनी की जानिब से मुकम्मल किए जाने वाले एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से कहा कि इन मंसूबों से न सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश बिजली बहरान के हल में बल्कि मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में भी बेहद मदद मिली है। TCL चाइना 3 गॉर्जियस की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स हांगकांग में लोकेटेड हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त 6 प्रोजेक्ट्स कर रही है। 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो झेलम रिवर पे हैं, 3 विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हैं झिमपीर सिंध में। तीनों विंड पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑपरेशनल में हैं। अभी वेरी रिसेंटली पिछले साल 720 मेगावाट का करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हुआ है। तो CCL की पाकिस्तान में प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और सबसे कामयाबी CCL को ये हुई है कि इन्होंने हाइडल का सबसे बड़ा सीपेक का जो मंसूबा है वो इन्होंने कंप्लीट किया है, तकरीबन 1 साल पहले कंप्लीट किया है। और इस प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें उन्होंने अस्पताल बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, बॉयज़ स्कूल्स और गर्ल्स स्कूल्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है पंजाब और AJK में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ से बच्चे सेलेक्ट किए हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया है 4 साल का फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, जिससे बच्चों ने BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। अब माशाल्लाह बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आगे हैं और उससे 10 से ज़्यादा बच्चों को हमने हायर भी कर लिया। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मुस्तफ़ा हैदर सैयद ने चाइना मीडिया ग्रुप से बात करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रोनमा होने वाली कुदरती आफात पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी के शोबे की बेहतरी के लिए चीन का ताउन बेमिसाल है। हमारी तरक्की का लिंक और हमारी पावर सप्लाई का जो डिमांड इतनी ज़्यादा है, 24 करोड़ अवाम है हमारी, वो सिर्फ मुंसलिक है ग्रीन एनर्जी के साथ। ग्रीन एनर्जी आपको पता है वो है जिसमें फॉसिल फ्यूल नहीं इस्तेमाल होते, जिसमें कोल नहीं इस्तेमाल होता, जिसमें थर्मल नहीं इस्तेमाल होता, जिसके कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं होते। और उसमें ये कंपनी जो है चाइना की, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, और जिसने ये आपने देखा करोट पावर प्लांट लगाया है कि जो क्लीन एनर्जी पे बेस्ड है, और विंड पावर के लगाए हैं उन्होंने थाटा और जम्पीर में, सिंध के सूबे में। तो हम ये चाह रहे हैं, और जो सेकंड फेज़, जो दूसरा फेज़ है सीपैक का 2023 से ऑनवर्ड्स, उसमें जो आगे प्रोजेक्ट्स हों इस इक्तिसादी राहदारी के, वो सारे क्लीन एंड ग्रीन हों। मुस्तफ़ा हैदर सैयद ने कहा कि सीपैक के तहत चलने वाले मंसूबों के स्टेक होल्डर वहाँ के लोकल अवाम हैं, जिनकी इन मंसूबों में शमूलियत हौसला अफजा है। लोकल कम्युनिटीज़ की लाइव्स ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। हर में भी आपने देखा कि ख़वातीन डंपर ट्रक्स चला रही हैं, और आप यहाँ भी अगर करोड़ जाएं, और मुझे जाने का मौका मिला है, तो वहाँ ब्रिजेस बन गए, रोड्स बन गए, उन जो गाँव है साथ उन्हें एक्सेस मिल गया है। और वहाँ स्ट्रीम्स जो थी जहाँ बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे गाँव के, वहाँ देयर फिश इन द स्ट्रीम्स, क्योंकि पोल्यूशन ख़त्म कर दिया उन्होंने, डेवलप कर दिया, रिस्टोर कर दिया बायोडाइवर्सिटी को वहाँ। तो लोकल कम्युनिटीज़ के बगैर तो ये है ही नहीं पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आगे जाना, एंड देयर विल ऑलवेज बी द मेजर स्टेक होल्डर्स इन डेवलपमेंट।
सेमिनार के मौके पर चाइना 3 गार्जेस कॉरपोरेशन की पाकिस्तान के हवाले से मुरतब करदा अपनी नौयत की पहली एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस रिपोर्ट का इजरा भी किया गया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के मातहत इदारे साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के सरबरा वांग मिनशेंग ने शुरका को पाकिस्तान के ग्रीन एनर्जी के शोबे की मजमूई सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से आगाह किया। ली कौमियत के फंड ज़रबफ्त को महफूज बनाने के लिए यूनेस्को और चीनी हुकूमत का इश्तराक कार्ड जारी है। चन मिंग ली ने नौकरी करने की बजाय ज़रबफ्त साजी का पेशा अपनाया और अपना ब्रांड लॉन्च किया और एक कामयाब कारोबारी खातून बन गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फाइव फिंगर माउंटेन यानी ऊज़ी शान को यह नाम 5 उंगलियों से इसकी मुशाबहत की वजह से दिया गया है। ये चीन के जनूबी सूबे हाइनान का लैंडमार्क और ली कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाली चनमांग ली का आबाई शहर भी है। लीजन ये लिबास ली कौमियत की पहचान है। ग्रेजुएशन के बाद चनमांग ली अपने आबाई इलाके में वापस लौट आई और अपना ब्रांड मुतारिफ करवाया। ली कौमियत की आबादी 1.5 मिलियन से कम है। इनके आम और ख़ास तमाम मलबूसात में ली जिन का रंग दिखाई देता है। ली कौमियत की ज़रबफ्त बुनने की तारीख 3000 साल से भी पुरानी है। इसका हर पार्चा एक किताब की तरह है, रंगाई, बुनाई और कढ़ाई की तकनीक की तारीख की किताब। सनतकारी के रुझान के बाद ली कौमियत के ज़रबफ्त बुनने का फ़न मादूम होने का ख़तरा मंडलाने लगा तो चीनी हुकूमत की गैर मादी सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पॉलिसी की मदद से 2009 में यूनेस्को ने ली कौमियत के इस फ़न को तरजीही तहफ़्फ़ुज़ वाले गैर मादी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल किया। ली जिन से चनमांग ली की दिलचस्पी और उनसियत बचपन ही से है। यूनिवर्सिटी में उसका मेजर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और ट्रेड था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसे अंदाज़ा हुआ कि आम लोग ली कौमियत की सकाफत के बारे में बहुत कम जानते हैं और वो ली कौमियत के ज़रबफ्त बुनने और रंगने की महारत से भी वाकिफ़ नहीं है। उसने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद वो बड़े शहरों में मुलाजमत करने की बजाय अपने आबाई शहर वापस जाएगी और ली कौमियत के रिवायती कपड़े को तैयार करने और इसके फ़रोग़ के लिए काम करेगी ताकि ली कौमियत के पुराने ज़रबफ्त की एक नई दिलकशी सामने आए। ये फैसला सिर्फ शौक की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये अपनी कौमियत से गहरी मोहब्बत की बदौलत भी था। घर लौटने के बाद चनमांग ने ली कौमियत के इस मखसूस कपड़े को बुनने का तरीका समझने और ली कौमियत की सकाफत सीखने के लिए ऊज़ी शान पहाड़ में आबाद ली कौमियत के छोटे बड़े तमाम गाँव का दौरा किया। वांग शू ली चनमांग की उस्ताद हैं। शूली साहिबा, मैं सीखने के लिए आई हूँ। मैं देखूंगी और सीखूंगी कि आप कैसे खाती हैं। ये क्या है? क्या ये लेदर फू है? हाँ, ये सब लफ्ज़ फू है। ये फसल का मंजर, ऊपर चावल तैयार करने का मंजर, वो जश्न बहार, वो पौधा चाय का पौधा है। इधर फील्ड्स हैं, खरबूजे के खेत, ये मक्की। हमारे सारिफ दुल्हन के लिए रिवायती शानदार लिबास बनवाते हैं। 2017 में चनमांग ली ने बू ली बू शर के नाम से अपना स्टूडियो खोला, जहां वो डिज़ाइनिंग से लेकर फ़रोख्त तक का तमाम काम खुद करती है। कारोबार बढ़ा तो उसने इसी की बुनियाद पर कंपनी भी खोली, जो कि कंपनी प्लस कोऑपरेटिव के मॉडल पर काम करती है। वो शराकतदारों को ऑर्डर देती है और वहाँ कपड़ा बुनने वाली खातीन मांग के मुताबिक कपड़ा बुनती हैं। पहले ये ऑर्डर तैयार करें। शहर में सियाहती ब्यूरो को रसीदें दरकार हैं। कुल 2600 yuan, 10 पीसेस, हर एक 260 yuan का। आंटी, तुम आ गई हो? जी मैं आ गई। कहाँ जाना है? अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएं तो चनमांग शराकतदारों के अलावा मकामी खातीन की मावनत लेती है, जो ली कौमियत के ज़रबफ्त बुनने की महारत के ज़रिए कमाती हैं और गुर्बत से निकलती हैं। अगरा ऑर्डर। सारिफ को ये चाहिए, तकरीबन 10 पीसेस।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 840 bà tôm ठीक है नानी rồi à sao ta không मैं ले जाऊं वो कर रही है मैं तुम्हें रकम दे दी हूँ ये ले दूर दराज पहाड़ों पर आबाद कारीगर जुली कौमियत के मखसूस ज़रबफ्त को रिवायत के मुताबिक काटती, रंगती, बुनती और फिर इस पर कढ़ाई करती हैं। तमाम अमल अपने हाथों से मुकम्मल करती हैं। ताहम ये रिवायती तरीक़ाकार न तो मौसर है न ही जदीद स्टाइल के मुताबिक। नौजवानों को लगता है कि ये जदीद फैशन के मुताबिक नहीं है, इसीलिए लीजन मार्केट में इतने ज़्यादा मकबूल नहीं थे। इस बात का एहसास हुआ तो chen mong lee इस मखसूस डिज़ाइन और कपड़े के नमूने को बैग्स और छतरियों में पेश करने पर गौर करने लगी। यूँ रिवायत महफूज रहने के साथ ही ली कौमियत का फ़न फैशनेबल भी लगेगा और इसे सारिफीन में मकबूलियत भी मिलेगी। 2018 में सूबा हाइनान को आज़ाद तिजारती बंदरगाह तामीर करने का मौका मिला। सदर शी जिनपिंग की मंसूबाबंदी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद तिजारती बंदरगाह और चीन के खुलेपन का एक नया हाईलैंड होगा। chen mong lee ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और आलमी सतह पर ली कौमियत के रवायती ज़रबफ्त को पेश किया। नवंबर 2021 में हाइनान इंटरनेशनल फैशन वीक के मुंतज़मीन ने ली कौमियत के ली जिन को शो में शामिल किया और इसे पेश करने के लिए chen mong को दावत दी। फैशन शो के मौके पर chen mong के काम ने खूब दाद समेटी। ग्रेजुएशन के बाद आबाई घर वापस जाकर कारोबार करने से लेकर हाइनान इंटरनेशनल फैशन वीक की डिज़ाइनर और 2022 बोआओ एशियाई फोरम के दौरान मुनक़िदा सकाफ़ती नुमाइश में शरीक ली कौमियत के ज़रबफ्त की उभरती हुई डिज़ाइनर बनने तक chen mong का ख्वाब कदम ब कदम ताबीर की जानिब बढ़ रहा है। chen की कंपनी तरक्की कर रही है और यहाँ ली कौमियत के ज़रबफ्त और मुतअल्लिका मसनूआत डिज़ाइन करने और बनाने के लिए 300 से ज़ायद अफराद मुलाजमत कर रहे हैं। वो अपने आबाई इलाके ही में मुलाजमत करते हैं और घर ही में बेहतर आमदनी हासिल करते हैं। चीन में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान chen mong की तरह बड़े शहरों को छोड़कर अपने आबाई घर वापस जाते हैं और मकामी लोगों के साथ कारोबार करते हैं। chen mong को उम्मीद है कि ली कौमियत के ज़रबफ्त वूजी शान पहाड़ और सूबा हाइनान की हद से बाहर निकलकर वसी स्टेज पर दिखाई देंगे और वो कौमी सकाफत की विरासत को फ़रोग़ देते हुए अपने आबाई घर की तामीर में भी खिदमत सरअंजाम दे सकेगी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अहलियान चीन अपने सकाफती विरसे से बहुत मोहब्बत करती हैं और इसे महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। चीन का ज़ेनयुज़ेन यानी ओल्ड समर पैलेस सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना है। हज़ारों बरस कदीम इस तारीखी विरसे के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ विक्टर हुगो ने कहा था कि दुनिया के मशरिक़ में दहयूर का एक फनकाराना मुआज़ा है जहाँ वह तमाम शहकार एक साथ हैं जो एक गैर मामूली कौम अपने दहयूर से तहरीक कर सकती है। ये एक नाकाबिले बयां इमारत है, बिल्कुल जंग महर की एक इमारत जैसी। ये है युएनमिंगयुएन यानी ओल्ड युएनमिंगयुएन, जिनके 5 बादशाहों छिंग हानदानमेन, योंगज़ेंग, qianlong, jiaqing, daogong, xianfeng ने तामीर करवाया था। ये अपने अजीम जोग्राफियाई महरे वकू, बागबानी के शानदार फन, शानदार तामीराती मनाज़िर और भरपूर सकाफती मजमून के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उसे गार्डन ऑफ 10,000 गार्डन्स कहा जाता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़र। मैं हूँ रिजवान अब्बासी। आज हम युएनमिंगयुएन यानी ओल्ड समर पैलेस में मौजूद हैं।
چین ہم جانتے ہیں کہ قدیم تہذیب ہے اور اس کے گہوارے میں بہت سارے ثقافتی مراکز ہیں. آج کا ہمارا یہ جو مقام ہے یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے, قدیم ہے لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت. جی ہاں, اور یوان مینگ یوان میں دیکھنے کے لائق بہت سی جگہ ہیں اور تفریحی راستے دو دن ہیں, اور ہر مختلف راستے پر دو مختلف طرز تعمیر اور ثقافتی تالی ہیں. اور آج جناب آپ تو یقیناً حیران رہ جائیں گے. بالکل, ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور ایسے مقامات میں آنا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بہت خوبصورت کھڑکی سے نا اپنے ماضی کو دیکھ رہے ہوں, جھانک رہے ہوں اور اس سے باتیں کر رہے ہوں. تو میرے خیال میں مزید انتظار کیے بغیر ہمیں اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے. گارڈن آف 10,000 گارڈنز اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. 1807 میں برطانوی اور فرانسیسی اتحادی افواج نے بیجنگ پر حملہ کیا اور اولڈ سمر پیلس میں دور پھور کی تاریخ میں بڑی تبدیلیوں نے دنیا کے اس عجوبے کو ان خندرات میں بدل دیا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے. آج کا دن ثقافتی ورثے کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے. 13 جنوری 1988 کو چینی ریاستی کونسل نے قومی اہم ثقافتی آثار کے تحفظ کے حوالے سے یوان مینگ یوان سائٹ کو ایک اہم سائٹ قرار دیا. یونگ جن کئی سالوں سے اس اہم ثقافتی آثار کی حفاظت کر رہا ہے. جناب, ماضی میں یہاں ایک محل تھا جس کا نام ہے چنگ دا گوانگ مینگ ہال ہے, جہاں بادشاہ سالگرہ کی تقریب اور جو اہم ضیافت اور شاہی امتحانات منعقد کرتے تھے. اچھا, پھر تو اس جگہ نے کافی ایک تو خوبصورت وقت دیکھا ہوگا اور اپنے دور کے بڑے عظیم لوگ یہاں سے ہو کے گزرے ہوں گے. اور ابھی تو خیر اگر اس ایریے کو دیکھا جائے تو کچھ باقیات ہیں اور کچھ سبزہ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ ایریا کافی وسیع ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جغرافی اگر دیکھیں عفت صاحبہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ پہاڑوں اور دریا کے درمیان میں گھرا ہوا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اصل نقشے کے مطابق اور اس کی شکل تو ایک اسکوائر ہے جس کے درمیان ایک سڑک تھی جو انتہائی وسیع تھی. اچھا, اور یہ ایریا کافی خوبصورت ہے, تو میرے خیال میں ایک تصویر لے لینی چاہیے. جی آف کورس. جیوزھو چنگین چیر کے شمالی کنارے پر واقع ہے اور چیر کے اس پار چنگ دا گوانگ مینگ ہال کے سامنے ہے. یہ یوان مینگ یوان ہال, فنگسان ووسی ہال اور جیوزھو چنگین ہال پر مشتمل ہے. جناب, ہمارے سامنے یہ بڑا سا لان جیوزھو چنگین کہا جاتا ہے. اچھا, اور یہ جو جگہ ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ یہ شاہی خاندان کے لیے رہائش گاہ تھی. اچھا, رہائش گاہ. اچھا, ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ رہنے کے لیے ایک بڑی پرسکون جگہ ڈھونڈتا ہے. تو آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا یہ پیچھے درخت ہیں, پرندے بول رہے ہیں, پیچھے جھیل ہے, تو رہائش کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہتر جگہ ہو سکتی ہے. جی بالکل. شانگ شا تین گونگ چیر کے کنارے ایک 2 منزلہ عمارت ہے. اب اس عمارت کی اوپری منظر سے چیر اور بانی کے رنگوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے بائیں اور دائیں طرف 3 پویلین ہیں اور عمارت کی پچھلی جانب ایک صحن ہے. جناب, یہ خوبصورت باغ دیکھیں. یہاں کھڑے ہونا ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پینٹنگ کا حصہ ہوں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں یہاں بادشاہ دو چاند کی روشنی سے لطف اٹھانے کے لیے تو مون کیک فیسٹیول کے موقع پر اہم ضیافت کا اہتمام کرتے تھے. اور ابھی مجھے بھی عفت صاحبہ یہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی تاریخی واقعے کا حصہ ہوں اور آپ کے آس پاس کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو ایسی ہی ایک کیفیت میں لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس بڑی سی جھیل کو دیکھیں کہ اس وقت جب بادشاہ ضیافت کا اہتمام کرتے ہوں گے تو یہ جو مہمان ہیں وہ اس اتنی بڑی جھیل کو دیکھ کر کتنا خوشگوار محسوس کرتے ہوں گے. جی بالکل. ون فنگ ان he ایک بڑی عمارت ہے جو پانی پر تعمیر کی گئی ہے.
पानी पर बनाई गई इमारत स्वास्तिका की शक्ल में है, जिसमें 33 हॉल है। इसका मतलब है दुनिया में अमन। इमारत की बुनियाद पानी की देह में बनाई गई है, इसलिए ये पानी में गहरे लटकती दिखाई देती है। अंदरूनी ढांचा जदीद है, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। ये शहंशाह यूंगचंग का पसंदीदा मकाम था। जनाब, अब देखें तो ये इमारत माजी में पानी पर तामीर की गई थी। और अभी हमने इस पे घूम फिर के भी देखा, ये बड़ा नफीस पत्थर का काम किया गया है। और आज से कई सदियां पहले पानी पर इमारत तामीर करना, जो कि आज नहीं हो सकती है, आज बड़ा मुश्किल काम है। और उस वक्त के जो चीनी कारीगर थे, मेरे ख्याल में बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जी बिल्कुल। ताशुए फासैट मगरिबी इमारत का सबसे शानदार चश्मा है। ये पत्थरों से बनी एक शक्ल है जो दरवाजे जैसी दिखाई है। नीचे एक बड़ा शेर का सर है जो पानी छलक रहा है, जिससे पानी का 7 पर्दों वाला पर्दा बन गया है। तालाब के बीच में तांबे का एक सीगा हरन है जो अपने संगों से पानी छिड़कता है। दोनों तरफ तांबे के बने 10 कुदे हैं जो अपने मुंह से घरों पर पानी छिड़कते हैं। उस जमाने में शहंशाह इस चश्मे को देखने के लिए सामने बैठा करता था। जनाब, ये देखें, ये एक फुआरा था ताशुए फासैट, जो चीनी और मगरिबी तामीराती खुसूसियात को जम करता है। ऐसा ही है। और इस किस्म का जो वाटर स्प्रे टेक्नोलॉजी है, ये हमें कदीम चाइनीज़ जो कंस्ट्रक्शन है उसमें निस्बतन नायाब नज़र आती है। लेकिन उस वक्त के कारीगरों के लिए मगरबी टेक्निक्स को बीच में इंक्लूड करना ये काफ़ी हैरानकुन बात है। जी बिल्कुल। हायन थांग मगरिबी इमारत का सबसे बड़ा महल है। यहाँ सबसे मशहूर मंजर ज़ोडियाक फाउंटेन है। दर हकीकत ये एक हाइड्रो क्लॉक है। कदीम चीन में एक दिन को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर 2 घंटे में एक जानवर अपने मुंह से पानी छिड़कता था। दोपहर 12 बजे तमाम जानवर मिलकर पानी का छिड़काव करते थे। ये मंजर बहुत शानदार होता था। चीन खानदान में मगरिबी मसरूम का डिज़ाइन किया गया है और चीन के दरबारी कारीगरों का तैयार करता यह हार मशरिकी और मगरिबी सकाफती खुसूसियात को यकजा करता है। जनाब, ये हायन थांग हॉल है और क्या आप जानते हैं कि अभी तक इसमें एक मिस्ट्री मौजूद है कि यहाँ का चश्मा वक्त के मुताबिक पानी का छिड़काव करना था और अभी तक इसका उसूल किसी को समझ में नहीं आया। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो चश्मा है ये एग्जैक्टली 2 घंटे बाद इसका पानी बाहर निकलता है। और उस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारी कंस्ट्रक्शन है, तो जो कारीगर थे वो न सिर्फ बागात की कंस्ट्रक्शन में बल्कि उनके जो कंस्ट्रक्शन मेथड्स और टेक्निक्स थे वो भी बहुत लाजवाब थे। जी बिल्कुल। आइए। चीन एक कदीम तहजीब है और इसकी एक तवीर तारीख है। चीनी तहजीब आलमी तहजीब की तारीख का वो वाहिद मुआजिज़ा है जिसमें 5000 साल से कोई रुकावट नहीं आई। चीन रवायती सकाफत की विरासत और सकाफती आसार के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत अहमियत देता है। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि सकाफत एक मुल्क और कौम की रूह है। ये मुल्क को तरक्की देती है और कौम को मजबूत करती है। मजबूत सकाफती एतमाद और सकाफती खुशहाली के बगैर चीनी कौम की अजीम इहया नहीं हो सकती। रवायती सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सख्त मेहनत कर रहे हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।